Today's topic of discussion is growth hormone. This is first aid, first aid 2023, and page number is 333. अच्छा, सारे फर्स्ट एड एक जैसे हैं, लेकिन बहरहाल ना, सो किसी भी हार्मोन को स्टडी करने के लिए वी शुड नो अ हार्मोन ऑन 3 लेवल्स. ठीक है, 3 लेवल्स. वन इज hypothalamus, the second is pituitary gland, and the third is that primary gland that secrete that hormone. ठीक है, सो वी विल स्टडी इट ऑन 3 लेवल्स. सो आज का टॉपिक जो है ग्रोथ हार्मोन है. ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड इज द ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड इज सोमेटोट्रोपिन. Why it is called somatotropin? We will study it in detail, okay? And it is secreted by anterior pituitary gland. So the growth hormone, suppose this is our anterior pituitary gland, anterior pituitary gland, and दिस इज़ आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ताकि इट्स क्लियर. सो दिस इंटीरियर पिक्चर वाई इट इज़ कॉल्ड सोमेटोट्रोपिन, एक्चुअली इसको समझा रहा हूँ और साथ में बहुत सारे और एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे. दिस इज okay. Our anterior pituitary gland has three kind of cells, three types of cells on the base of its staining. One type is called chromopobe. Chromopobe, the word mean कि कोई कलर नहीं लेता, लेकिन इसकी एक और क्वालिटी ये है कि it doesn't secrete any hormone. So secrete no hormone. ठीक है. The other is called acidophile क्योंकि it take color red or pink, so it's called acidophile. And the third one is basophile. Basophile, it means it take which color, blue or purple. Okay, so acidophile has two types of cell. One is called somatotrophs and the other is lactotrophs. Basophile, on the other hand, has three types of cell. One is thyrotrophs, second is corticotrophs, and the third is gonadotrophs. अच्छा, जिस तरह हमने कह दिया क्रोमोप्रोब हैज़ सिक्रेट नो हार्मोन. द एसिडोफिल में दो टाइप्स हैं, एक है सोमेटोट्रॉप, दूसरा है लेक्टोट्रॉप. सोमेटोट्रॉप रिलीज GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन. That's why it's also called as somatotropin. Lectotrophs release which hormone, prolactin, and thyrotrop release TSH. Gonadotrop release FSH and LH. ठीक है, and corticotrop release actually ACTH.
ठीक है. So this is your histology of your anterior pituitary gland. So why the growth hormone is called somatotropin? Because it is released by what? By the acidophilic cells, that is somatotropes. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे? दिस इज योर hypothalamus. Normally GHRH, growth hormone releasing hormone, are released by the hypothalamus. ये किताब के जो स्ट्रक्चर हैं, and it stimulates the anterior pituitary gland which sells somatotropes, and somatotropes release in the anterior pituitary gland. The somatotropes है that release growth hormone. ठीक है, this is second level, and this is it release growth hormone, and this growth hormones act on the liver. ठीक है, in liver release IGF-1. This is insulin growth factor, and it is also called as somatomedin. अच्छा, इसको और एक और नाम क्या देते हैं? सोमेटोमेडिन सी. ठीक है. क्या होता है? हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं which stimulates somatotropes in the anterior pituitary gland that release growth hormone, and growth hormone works on the liver that release IGF-1, and then IGF-1 do further most of the growth hormone functions. Acha, what does actually growth hormone IGF-1 do? They says IGF-1 is also called as somatomedin C. It stimulates linear growth of the bone in the muscle mass, ठीक है, that is secreted by liver. ठीक है. एक और ये कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के दो फंक्शन होते हैं. ठीक है, दो किस्म के फंक्शन. एक को कहते हैं डायरेक्ट फंक्शन, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन. ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट फंक्शन. द इनडायरेक्ट फंक्शन जो कि मेजोरिटी में है, दैट इज थ्रू द IGF-1, एंड वन इज डायरेक्ट फंक्शन. डायरेक्ट फंक्शन एक ये है कि इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस. ठीक है, एंड द अदर थिंग इज इट इंक्रीज रेजिस्टेंस फॉर द इंसुलिन. मतलब ये कि इट इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस. मतलब क्या कि जिस तरह की दूसरे, अच्छा याद रखिए, जिस तरह के हमें पता है दूसरे स्ट्रेस हार्मोन्स है, दिस कॉर्टिसोल, एंड द अदर इज दिस एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन. ठीक है, टाइप. और तीसरा इसी तरह ग्रोथ हार्मोन. अच्छा, ये नॉर्मली क्या करते हैं? दीज आर कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस हार्मोन्स. नॉर्मली क्या करते हैं? दे मेक श्योर कि आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी के लिए क्या हो? ग्लूकोज अवेलेबल हो. ठीक है, ब्लड में अवेलेबल हो. सो व्हाट एक्चुअली द ग्रोथ हार्मोन डू? इट इंक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ताकि ये ग्लूकोज जो है इसकी स्पेसिफिक ऑर्गन को एंट्री ना हो. ठीक है, ताकि इसकी एंट्री ना हो. इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज डायबिटोजेनिक, क्योंकि इट इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है. और साथ में हमने इनडायरेक्ट की जो कहा, इनडायरेक्ट कौन से फंक्शन है? इनडायरेक्ट फंक्शन जो हैं यहाँ पर जो लिखे हैं आप देख ले. इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, so that's how the muscle grow. It increase what? The other is linear growth. ठीक है. और साथ में it increase the cell size in number. अब हम ये भी आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे कि how it increase size in number
और किस मौके पर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन के लिए इन्होंने आगे बात की है, दिस इज अबाउट हाउ द ग्रोथ हार्मोन्स इज secreted, what is the stimulus for the growth hormone, और नॉर्मली ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, जो भी बॉडी बिल्डिंग करता हो या जिनकी घर भी ना हो, एवर हैज़ बॉडी बिल्डर एट होम, और जो जिम के लिए जाता हूँ उनके लिए जिम ट्रेनर एक बात कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक योर बॉडी, ठीक है, आपने क्या करना है, वो कहते हैं आपने अच्छे से अपने स्लीप का ख्याल रखना है। आपने 8 घंटे जो हैं, आप बस रिमेंबर दिस डायग्राम, आपने बेहतरीन जो है नींद करना है, ठीक है। यू हैव टू स्लीप फॉर अ डीप स्लीप फॉर 7-8 आवर्स और मोर। और दूसरा वो कहते हैं यू हैव टू ईट मोर प्रोटीन डाइट, सो दैट इज स्पेसिफिकली अर्गिनिन। तीसरा उन्हें कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और चौथा उसे कहते हैं कि कोशिश करें कि जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वाले जो खाने हैं वो कम से कम खाएं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली द ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलस, वन इज स्लीप, दिस इज डीप स्लीप, एंड स्पेसिफिकली जो एग्जाम में अक्सर आता है डेल्टा स्लीप। अब ये ना पूछना कि व्हाट इज डेल्टा स्लीप, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डेल्टा स्लीप के बारे में बताता हूँ। दूसरा है प्रोटीन डाइट विच कंटेन्स अर्गिनिन। तीसरा है एक्सरसाइज। फोर्थ क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। और साथ में जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले कह दिया कि स्ट्रेस, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है, प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी की टाइम ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होते इसलिए बंदा बढ़ता है, ठीक है। याद रखे, अगर जब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो बिफोर प्यूबर्टी और बिफोर क्लोजर ऑफ epiphyseal प्लेट्स, सो बंदे ने क्या होना है, कद बढ़ना है। सो दिस इट विल बी linear growth, but growth hormone after in the adulthood or after the epiphyseal plate closure, ठीक है, आफ्टर। और वो दूसरा जो है बिफोर। सो क्या होना है, नॉर्मली बोन बढ़ तो नहीं सकती लीनियर ग्रोथ, लेकिन डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है, नॉर्मली, और साथ में मसल मास बढ़ेंगे। सो नॉर्मली हाउ, सो दैट्स हाउ द ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। इसीलिए बॉडी बिल्डर जितने बढ़ते हैं इनके मसल मास इंक्रीज होता है, बोन जो है उसकी जो है डायमीटर इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं। सो इसके लिए स्टिमुलस क्या है, स्लीप है ग्रोथ हार्मोन के लिए, प्रोटीन डाइट स्पेसिफिकली विच हैज़ अर्गिनिन, एक्सरसाइज, कार्बोहाइड्रेट लेस फूड दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, hypoglycemic food, or you can say hypoglycemia, the stress, puberty, and exercise. This all actually increase the growth hormone. अच्छा, what actually decrease the secretion of growth hormone? It will be decreased by the aging, obesity, hyperglycemia, ठीक है, somatostatin, and दूसरा क्या है, द सोमेटोमेडिन IGF-1। जाहिर सी बात है, व्हेन इट इंक्रीज सो इट विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी एंड GHRH के काइंडली और ना बनाएं, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द स्टिमुलस विच डिक्रीज द ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, एक इस चीज़ में एक और चीज़ क्या अहम है, थोड़ी देर पहले हमने कह दिया कि इफ़ द ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पर हमने कह दिया, यहाँ पर हमने कहा कि if it the growth hormone is secreted before the closure of epiphyseal plate, so the person will grow linearly
it will grow taller and taller. This taller and taller growing is called gigantism. Gigantism. Okay. But if the growth hormone is increased after the puberty, after the adulthood, और आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिकल प्लेट, बंदे ने कैसे बढ़ना है, ठीक है, हमने कहा कि बोन की डायमीटर बनेगा, बढ़ेगा, और साथ में लीनियर ग्रोथ तो नहीं होगी लेकिन डायमीटर वाइज हो सकती है। अच्छा, इसको नॉर्मली मुख्तलिफ ऑर्गन के बढ़ने को नॉर्मली क्या कहते हैं, इसको एक्रोमेगेली कहते हैं। ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन इफ इट इज सिक्रेटेड इन हाई अमाउंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इट विल कॉज जाइजेंटिज्म, and if it increases after the adulthood or after the closure of epiphyseal plate it will cause acromegaly। ठीक है। मैं आप लोगों को, अच्छा, दिस इज़ अ वुमेन जो कि यू कैन सी द फेस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, लेकिन बाद में जो है आफ्टर somehow there was pituitary adenoma which was releasing growth hormone, so somehow you can see the face, this is acromegaly। acromegaly में क्या होता है, नॉर्मली प्रोमिनेंट जा होती हैं, इसी तरह प्रोमिनेंट सुपराऑर्बिटल रिज होते हैं, और इसके अलावा जो है पेशेंट जो है उसका मुंह नाक की सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाते हैं। और याद रखें इसके साथ साथ इसका एक और काम क्या है, जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, जाहिर सी बात है इट विल इंक्रीज नॉट ओनली द बोन एंड द मसल ऑफ द बॉडी, साथ साथ में जितने आपके इंटरनल विसरा है, नॉर्मली इवन विसरा जो है इसकी भी ग्रोथ होती है। सो विसरल ऑर्गन जो हैं जितने हैं, विसरल इंटरनल ऑर्गन, उनकी भी ग्रोथ होती है। इस वजह से पेशेंट को जो है कार्डिक हाइपरट्रॉपी भी होती हैं, साथ में पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर का भी बीमार बन जाता है, और साथ में एक और है हमने कह दिया कि ग्रोथ हार्मोन इज़ डायबिटोजेनिक, हमने कहा कि डायबिटीज़ पेशेंट को होगी। ठीक है, मूड स्विंग्स हो गए, साथ में उसको स्वेटिंग बहुत होगी क्योंकि हाइपरट्रॉफी ऑफ क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, स्पेड लाइक हैंड्स होंगे, और सारी चीज़ें नॉर्मली एक्रोमेगैली के जब ग्रोथ हार्मोन्स आफ्टर द क्लोजर ऑफ एपिफाइजल प्लेट या ड्यूरिंग एडल्टहुड जो है इंक्रीज हो। नॉर्मली दिस सच पेशेंट प्रेजेंट इन बिटवीन एज ऑफ 30 to 50। अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल में आया था, दिस इज़ आवर पेशेंट जिसको हमने डायग्नोस किया था कि आपको, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये मसले होते हैं, स्वेटिंग काफ़ी होती है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्वेटिंग हो रही है, और साथ में उन्होंने कहा कि साथ में जो है मेरी जो है पाँव की जो है चप्पल छोटे ही रह जाती है, और हमारा मेरा पाँव जो है वक्तन पर वक्तन बढ़ता रहता है, और मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं। बहरहाल इसको इनको हमने कहा कि आप अपनी IGF-1 लेवल चेक करें, और साथ में फिर उसके बाद हम देखते हैं MRI आपकी ब्रेन की कराएंगे इंशाल्लाह। सो यू कैन सी माय हैंड एंड हिज हैंड। ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर है यू कैन सी है, दिस इज़ पिक्चर ऑफ जाइजेंटिज्म। हुआ क्यों था, क्योंकि चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज हो गए थे। ठीक है। सो दिस इज़ योर ग्रोथ हार्मोन। और एक और बात, सो हाउ नॉर्मली वी ट्रीट सच पेशेंट्स जिसको एक्रोमेगेली हो या जिजेंटिज्म हो। ठीक है। सो नॉर्मली ट्रीटमेंट इज़ हम सोमेटोस्टैटिन एनालॉग देते हैं। सोमेटोस्टैटिन इज़ व्हाट, इट इज़ अ हार्मोन विच एक्चुअली ऑलमोस्ट inhibit all hormone release almost। ठीक है। सो सोमेटोस्टैटिन एनालॉग देते हैं, दैट इज ऑक्टेरोटाइड। ठीक है। और सर्जरी कराते हैं। सो दिस इज एक्चुअली योर ग्रोथ हार्मोन इन डिटेल। सो लेट्स हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं। कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड ए सोमेटोट्रोपिन दैट इज सिक्रेटेड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कहते हैं इट इज स्टिमुलेटेड बाय
What growth hormone do? It stimulate linear growth and muscle mass growth, that is through IGF-1. ठीक है। एक और उन्होंने कहा कि चूंकि it increase insulin resistance, so the glucose available in the blood, ठीक है, so it is also diabetogenic। एक और कहते हैं चूंकि अच्छा हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज इन पल्स in response to the growth hormone releasing hormone from the hypothalamus, ठीक है। Stimulus for secretion is sleep, which sleep, that is delta sleep। normally delta sleep is the third level of in जो है what is the delta sleep is जो इन और नॉन रैंडम आई मोमेंट स्लीप जो होते हैं इन REM, इसका जो मोस्ट डीपेस्ट स्लीप है थर्ड, ठीक है, वो है डेल्टा स्लीप। ठीक है, बहरहाल आगे जो है स्लीप पढ़ेंगे फिर आप लोगों को समझ आए। अच्छा और सो हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्यूबर्टी, एक्सरसाइज, इस बॉडी बिल्डर को याद रखे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और जो है सिक्रीशन कैसे इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, हमने कहा ये देख ले, एजिंग से, ओबेसिटी से, हाइपरग्लाइसीमिया से, ठीक है। एक और जो है सोमेटोमेडिन जो है ये नेगेटिव फीडबैक करे और सोमेटोस्टेटिन से, ठीक है। अच्छा, जब एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो उसको ड्यू टू एनी पिट्यूटरी एडिनोमा, सॉरी, सो नॉर्मली अगर एडल्टहुड में हो, दिस इज एक्रोमेगेली, बच्चों में हो जाए तो जिजेंटिज्म में लीनियर ग्रोथ, बंदा बहुत टाल हो जाता है, एक्रोमेगेली। अच्छा, ट्रीटमेंट इज हमने कहा सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, दैट इज ऑक्टीरोटाइड। नॉर्मली एक और चीज़, अच्छा डायग्नोस कैसे करते हैं एक्रोमेगेली को, इंस्टीट टू चेक ऑन द ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन पल्सेटाइल सिक्रीशन होती है, जिस तरह हमने ये कह दिया, ठीक है। पल्सेटाइल GHRH सिक्रीशन होती है, इस तरह पल्सेटाइल ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन होती है। सो हमें सीरियसली अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि टाइम के साथ ये चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइम पर ग्रोथ हार्मोन लेवल का एक अलग मकदार होगा क्योंकि पल्सेटाइल सिक्रीशन है। सो जो मोर स्टेबल सिक्रीशन है दिस इज IGF-1। सो नॉर्मली हम डायग्नोस कैसे करते हैं, IGF-1 की लेवल देखते हैं, ठीक है। IGF-1 लेवल अगर ये इंक्रीज़ हो उसके बाद हम इसको पीछे रीज़न कि हाँ पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, सो नॉर्मली हम MRI ब्रेन कराते हैं। So this is actually your MRI brain. This is actually your growth hormone in detail.